اگر آپ سانس روکے رکھتے ہیں تو کتنی ارج ہوتی ہے کہ سانس کو کیا کیا جائے؟ نکال دیا جائے. یو کین ناٹ ہولڈ اینی مور. ہم زیادہ دیر تک سانس کو روک نہیں سکتے. ٹھیک ہے جی. اندازہ کریں خدا نے جب کہا اور خدا نے دم پھونکا زندگی کا, when God said, God uttered a word, خدا کب سے ہولڈ کیے ہوگا اس کریشن آرڈر کو؟ لانگ سفرنگ گاڈ. خدا نے اپنے آپ کو کتنا ہولڈ کیا ہوگا کہ وہ اس بریتھ کو, اس کریشن کو کیا کرنے دے, اس کو ریلیز کرے. ہم انسان ہوتے ہوئے تھوڑی دیر تک روکنے کے علاوہ وی کین ناٹ ہولڈ اٹ آؤٹ. خدا نے کتنی دیر روکا ہوگا؟ سو دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے بڑے بڑے آئیڈیاز ہیں, کانسیپٹ ہیں کریشن کے بارے میں. جب ہم یہ کہتے ہیں, بائبل یہ کہتی ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو کیا کیا, شاید ہمارے جو سائنٹیفک لوگ ہیں, جو انلائٹنڈ لوگ ہیں, جو دیگر مذاہب کے لوگ ہیں, شاید وہ خدا کے کانسیپٹ کو نہ جانتے ہوں. بدھسٹ شاید کہیں نہیں جی اٹس اے کنٹینیوس سائیکل, کوئی چیز ابتدا انتہا نہیں ہے, اٹس اے کنٹینیوس سائیکل. ہندوازم شاید کہے کہ جی نو اٹس اے سرکل, یہ بھی ایک سرکل ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی ابتدا انتہا نہیں ہے. لیکن بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ ابتدا میں خدا ہے. گاڈ از دا اوریجنیٹر آف دس کریشن. سو 26 اور 27 آیت کو امیج کی طرف چلتے ہیں, کیونکہ کل ابھی ہم نے جنازہ اور وی ور ٹاکنگ اباؤٹ دا ان کمنگ اینڈ آؤٹ گوئنگ انسان کا زمین پر ٹائم فریم سارا کچھ تھا. سو اسی کو تھوڑا سا ایک اور الگ پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں. نمبر 1, پہلی چیز 27 and 28, 26 and 27 and 28. پھر خدا نے کہا, اگین ہولڈنگ بریتھ اینڈ ریلیزنگ بریتھ. خدا نے کہا کیا ہم انسان کو اپنی امیج اور پھر اپنی شبیہ, لائکنس اینڈ امیج, دو انگلش ورڈ ہیں یہاں پر, ہماری مانند صورت پر اور اپنی شبیہ پر کیا کریں کہ مانند بنائیں. اور وہ اب بنا تو دے گا خدا, دین آگے جو اس کا جو ایکشن ہے, جو آگے اس کا ڈومین ہے, دیٹ ریفلیکٹ گاڈس امیج. ٹھیک ہے, کیا ہے؟ اور وہ خدا کی طرح, بیکاز ہی اور شی از این امیج آف گاڈ. ٹھیک ہے, وہ کیا کرے گا؟ سمندر کی مچھلیوں, آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور تمام زمین اور سب جانداروں پر جو زمین پر رینگتے ہیں, کیا پریکٹس کرے گا؟ کیا لکھا جی آگے؟ اختیار, اتھارٹی, رول. خدا کی طرح, کیونکہ وہ خدا کا امیج ہے, وہ زمین پر کیا کرے گا؟ خدا کی دی گئی اتھارٹی کو, خدا کے دیے گئے سیلف امیج کو وہ زمین پر کیا کرے گا؟ رول کرے گا, اتھارٹی کرے گا, پریکٹس کرے گا زمین کے اوپر. نمبر 1 اختیار رکھے, اینڈ دین اسی کا سیکنڈ اکاؤنٹ, اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر, پہلے کونسل ہوئی ہے ہم, سمجھ آئی نا بات کیا ہو رہا ہے؟ پہلے کیا ہوئی ہے؟ پہلے کونسل ہے جس میں سارے کیا ہیں, میں بھی بتاتا ہوں یہ کونسل کے کیا کانسیپٹ ہے, کونسل کون سی ہے یہ. ٹھیک ہے, تو پہلے گفتگو کن کے درمیان ہو رہی ہے؟ صیغہ جمع, پلورل, ہم. ٹھیک ہے, ہم کے بعد اب کس پر آیا ہے؟ انڈیویجول پر آیا ہے. اور خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا, خدا کی اگین صورت پر کیا کیا؟ اس کو پیدا کیا, نر و ناری ان کو پیدا کیا. اوکے جی, یہ اٹس ٹو رچ, صرف یہ دو لفظ ہی بڑے رچ ہیں, میں کوشش کرتا ہوں کہ کم وقت میں اس کو میں ان پیک کروں. 28ویں آیت, اگین یہ جو ایکشن ہے یہ پیش کرے گا خدا کے امیج کو انسان کے اندر. اور خدا نے ان کو برکت دی, یاد رکھے گا اب سیلف سنگولر پلورل, ان کو. ٹھیک ہے جی, خدا نے ان کو کیا دی؟ برکت دی. اور کہا, اگین بریدنگ آؤٹ, کیا؟ یہ کمبائن ورڈ ہے. ٹھیک ہے, کمبینیشن ہے دو لفظوں کا. کیا ہے؟ نمبر 1
پہلا کمبینیشن کہاں پر آیا ہے؟ نر و ناری پارٹنرشپ. پارٹنرشپ دیکھیے گا کہاں پر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, لفظوں کی پارٹنرشپ بھی اور کام کی پارٹنرشپ بھی ہے. نر و ناری ان کو پیدا کیا اور کہا, کمبائنڈ ورڈ آ رہے ہیں, پھلو اور بڑھو. ٹھیک ہے, زمین کو معمور ہو, محکوم کرو, اور سمندر کی مچھلیوں اگین اور کیا رکھو؟ اختیار رکھو. اوکے جی, ان تین کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے غور کرتے ہیں جی. نمبر 1, پہلی بات, یہ کونسل کون ہے؟ ٹھیک ہے, یہ جو لفظ آ رہا ہے نا ہم کو, بڑا میرے ورگا ریفارمڈ پریسبیٹیرین ریفارمیشن بندہ کہے گا او ہو یہ تو جی تسلیس ہے, خدا باپ, خدا بیٹا, خدا پاک روح کیا کہہ رہے ہیں, اے انہوں نے میٹنگ چلن رہی ہے اور تسلیس یہاں پر محو گفتگو ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے, پیدائش کی کتاب تو کرسچنوں نے لکھی نہیں ہے, یہ تو موسیٰ نے لکھی ہے, تو تسلیس تو اس وقت کہاں آ گئی؟ کیونکہ تسلیس کا کانسیپٹ تو چوتھی پانچویں صدی کے بعد جا کر آ رہا ہے, جب ہیرسیز آنا شروع ہو گئی, بدعتیں آنا شروع ہو گئیں, تو چرچ فادرز نے, تھیولوجینز نے بیٹھ کر ڈیسائیڈ کیا کہ ہم جو خداوند یسوع مسیح کی الوہیت اور اس کی انسانیت ہے اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے خدا ثالوث جو تثلیث کا کانسیپٹ ہے دیٹ شوڈ بی انٹروڈیوس, اور اس کو قبول کیا جائے تاکہ ہم بدعتوں کا کیا کر سکیں, مقابلہ کر سکیں, غلط تعلیم لوگوں میں نہ پھیل جائے یسوع مسیح کے بارے میں. So that's why the Trinity کا جو کانسیپٹ پیش کیا گیا. تو پیدائش کی کتاب پرانا عہد نامہ تو کرسچنوں نے نہیں لکھا, تو پھر کرسچن کانسیپٹ تو یہاں پر کیا ہو گیا؟ انہوں نے کہا جی اس کو سائڈ پہ رکھ دیں, فی الحال یہ یہاں کام نہیں کرے گا. اوکے جی, دین جوش لوگ کیا کہتے ہیں؟ اچھا جی ٹھیک ہے, یہودیوں نے لکھی ہے جی, موسیٰ نے لکھی ہے کتابیں, اور موسیٰ نے, اچھا کتابوں سے مجھے یاد آ گیا, اس سے پہلے میں بھول جاؤں, میں نے آج لنک بھی شیئر کیا. آپ کو پتا ہے پہلی صدی کے اندر سب سے پہلی کرسچینٹی جو کرسچن نیشن تھی, کسی کو پتا کون سی تھی جو کرسچن ہوئی, پوری سلطنت کرسچن ہو گئی؟ آرمینیا. نمبر 1, ترکی کے ساتھ چھوٹا سا ملک ہے پہاڑوں کے درمیان, پہلی کرسچن سٹیٹ پہلی صدی کے اندر, بادشاہ سے لے کر پرجا تک سارے کرسچن ہو گئے, آرمینیا. سیکنڈ کسی کو پتا ہے؟ ایتھوپیا. ٹھیک ہے جی, افریقہ. تیسری کسی کو پتا ہے؟ اچھا میرے ذریعے نام آ گیا, پھر نکل گیا, وہاں کا بشپ بڑا مشہور تھا, کمان, چلے میں آپ کو لکھ کے ہم واٹس ایپ پہ ڈال دیں گے. ٹھیک ہے جی. تیسری بھی نان ویسٹرن, یہ ویسٹرن ہے, پوپ شوپ, یہ سارا ویسٹرن, روم شوم, یہ تو سارا چوتھی صدی کے بعد آیا ہے. تو پہلی صدی کے اندر فرسٹ کرسچن سٹیٹ آرمینیا, دوسری کون سی؟ ایتھوپیا. آج جو میں نے لنک آپ کو بھیجا اس میں ایک بائبل کا ذکر ہے. ٹھیک ہے, اور اس بائبل میں لکھا ہے کہ اٹس اے مور دین 1400 ایئرس اولڈ ہینڈ ریٹن ایتھوپین بائبل, اور اس کے اندر 66 کتابیں نہیں ہیں بلکہ کتنی ہیں؟ 84 کتابیں ہیں جو بعد میں نکال دی گئی. تو یاد رکھے گا آج کی جو کرسچینٹی ہے اور جو پہلی 3 صدیوں کی کرسچینٹی تھی, کرسچینٹیز بلکہ کرسچینٹی نہیں, کرسچینٹیز, دے آر انٹائرلی ڈفرنٹ. تو ہمارا چونکہ سبجیکٹ نہیں ہے, بات ہوئی ہے کتابوں سے, تو میرے ذہن میں آ گیا تھا, میں آپ کو بتا دوں کہ یو شوڈ نو کہ جی how the Christianity and the faith and the Bible has been developed gradually, and how آج پوری دنیا کے اندر 66 کتابوں پر لوگ کیا کرتے ہیں, بلیو کرتے ہیں. اوکے جی, سو پھر یہودی لوگ کیا کہتے ہیں جی, یہ کونسل کون ہے؟ 2 کانسیپٹ ہیں جی. نمبر 1, جوش ٹریڈیشن کے مطابق خدا کی حکمت خدا کے ساتھ تھی, the wisdom of God. آپ نے دیکھا زبور 104 میں ہم نے پڑھا نا کہ اس نے حکمت سے ان کی کیا رکھی, بنیادیں رکھی, with the wisdom. ایوب, جب خدا ایوب سے سوال جواب کرتا ہے, خدا کہتا ہے بتا تو کہاں تھا جب میں نے زمین کی کیا رکھی, بنیاد رکھی, جب میں نے سمندر کی حدیں باندھ, تو بڑا سمارٹ بننا نا, بڑا ہوشیار بننا نا. کئی لوگ دنیا چ ہر بندے کا انہوں نے نظر کی ہوں, مطلب وہ آپ ہی سیلف سمارٹ بنے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہی صاحب تو ٹھیک ہے, باقی سارے دنیا بے وقوف ہے. اس لیے کلام میں لکھا تو اپنی نگاہ میں دانش مند نہ بن, ساری دنیا جھوٹ ہے, اور یہی بات ٹھیک ہے. ہم جس انداز سے دنیا, جو میرا ایکسپیرینس ہے جی, جو جی میرا نالج ہے وہ جی وہ تو سب سے بڑا ہے, اور باقی سارے لوگ تو جناب جڑے نا وہ چھولے بیچ دے آئے ہیں. حالانکہ چھولے بیچنا بھی بزنس بڑا مائنڈ کا کام ہے. اینی وے, سو وزڈم, خدا کی حکمت. امثال کی کتاب 8واں باب اگر آپ پڑھیں گے تو وہاں پر آپ کو نظر آئے گا, حکمت کہتی ہے میں کوچوں میں پکارتی ہوں, میری آواز سنو. کہتے ہیں حکمت
गलियों में विजडम, अ लेडी विजडम, सोफिया जिसका ग्रीक नाम है सोफिया, फिलॉसफी जहां से वर्ड निकला है, फिलो द वर्ड एंड द सोफिया, फिलॉसफी, द नॉलेज, विजडम, हिकमत ने काम किया जी। सो जूइश ट्रेडिशन क्या कहता है कि जी काउंसिल में कौन लोग शामिल थे? हिकमत थी और खुदा था। अब दूसरा सवाल एक और बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो एंशिएंट ट्रांसक्रिप्ट हैं वो कुछ और कहते हैं, और बाइबल के कुछ हवाला जात हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, एविडेंस करते हैं। क्योंकि जो इब्रानी में जो खुदा के लिए यहां पर नाम आया है, दैट इज नॉट अ सिंगुलर गॉड, इट्स नॉट याहवे कि जी एक खुदा कल्ला ही, नो। जो वहां पर खुदा का नाम आया है दैट इज एलोहीम। क्या नाम आया खुदा का पैदाइश की किताब में? एलोहीम। दिलचस्प बात है, पंजाबी बाइबल में हमने शायद एक बार देखा था कि जो पैदाइश पहले बाब की पहली आयत है वो किससे शुरू हो रही है पंजाबी बाइबल? करो जी अपने पंजाबी भाई। सृष्टि दी रचना ना, आयत पूरी पढ़ें। ओके, परमेश्वर ने आकाश ते धरती, ओके थैंक यू। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? सेम है? ओके, सो परमेश्वर ने सृष्टि दी, स्टार्टिंग शुरू है। ओके, नाउ इंटरेस्टिंग, उर्दू तर्जमे में यही है, खुदा ने इब्तिदा में, ठीक है। ओरिजिनल हिब्रू में ऐसे नहीं है। ओरिजिनल हिब्रू है बरेशित बारा बारा एलोहीमा। पहला लफ्ज एलोहीम अलिफ नहीं है, बेत है, बरेशित, तख्लीक किया। वाई नॉट अलिफ एलोहीम एंड वाई बेत? Why starting with the Bereshit, not with the Elohim? That's interesting. So Jewish scholars, sages, वो ये कहते हैं, इंटरेस्टिंग इंटरप्रिटेशन है इसकी, बाय द वे इस पर डिबेट है, क्यों अलिफ एलोहीम खुदा के नाम से क्यों शुरू नहीं हुआ? Why it's starting with बे? क्योंकि हिब्रू हरीफत अजी है ना, अलिफ बेत गिमल दालत, जिन लोगों ने हिब्रू अलिफ बे पढ़ी है, they know well. So क्या है? तो आगाज में खुदा नहीं है, आगाज में क्या है? इब्तिदा में, इब्तिदा में बरेशित बारा एलोहीम। क्यों? Why not Elohim? Because Elohim is beyond human comprehension. Elohim से स्टार्ट नहीं कर सकते। Jewish sages ये कहते हैं it started with बेत, क्योंकि बेत का इब्रानी में मतलब है घर, और बेत का जो सिंबल है दैट इज, जिस तरह घर की चार दीवारी होती है ना, उसका सिंबल वो है, एक दीवार, दूसरी दीवार, तीसरी दीवार, सामने एंट्रेंस होने के लिए खुला, ताकि लोग क्या हो सके, दाखिल हो सके। तो चार दीवारी नहीं बल्कि कितनी दीवारी है? एक साइड खुली हुई है। बे का अगर आप देखेंगे हिब्रू बे कैसा है, ब्रेशत जिसे लिखा जाता है, इट्स लाइक दिस, तीन दीवारें। वो कहते हैं जी खुदा ने इसलिए ब्रेशत से शुरू किया बे से, क्योंकि इंसान एलोहीम से खुदा अगर शुरू करता, दे वुड बी कंफ्यूज, दे वुड नेवर गेट व्हाट गॉड इज ट्राइंग टू सेइंग। सो खुदा ने सिर्फ बे से शुरू किया, क्योंकि एक दीवार सिर्फ खोली जहां से वो जा सके, बाकी तीनों मिस्ट्रीज क्या कर दी? बंद कर दी। आपको यार यसुम से ने कहा था कि जितनी बातें तुम्हारे जानने की थी वो मैंने तुम्हें क्या कर दी हैं? यसुम ने कहा अगर मैं तुम्हें बताऊं, पौलुस रसूल ऊपर से देख रहा था, कहता है मैं थले तो अंदर था, पागल हो जाओ। यू कैन नॉट कॉम्प्रीहेंड। हमारी इतनी हैसियत, हमारा कॉम्प्रीहेंशन इतना नहीं है। वी कैन एक्वायर एंड कॉम्प्रीहेंड हु गॉड एलोहीम इज। सो एलोहीम, इसका मतलब यह हुआ कि तीसरा जो मैन्यूस्क्रिप्ट है, जो एंशिएंट स्कॉलर्स हैं वो क्या कहते हैं कि इट इज गॉड, देयर इज अ प्लूरलिटी इन द गॉड हेड। खुदा अकेला नहीं है, खुदा के अंदर इज्तमाइयत है, जिसको डिफाइन करने के लिए क्रिश्चियन कॉन्सेप्ट दिया गया ट्रिनिटी का। लेकिन एंशिएंट स्क्रिप्ट्स कहते हैं जी ये जो हम है, दिस इज नॉट अ रॉयल हम, जैसे ना हमारे उर्दू में बोले जाते हैं जी आप तशरीफ रखिए जी, हम अभी वहां जाएंगे, हम वहां जाएंगे, ये हम वो हम नहीं है, ठीक है। दिस इज नॉट अ रॉयल हम और अ वी। व्हाट इज दिस देन? इंटरेस्टिंगली, द
ancient world, it is a divine council at work, angels and other divine beings. Other divine beings में कौन कौन है? This is another debate, कभी हम इस पे बात करेंगे, खुदा ने मौका दिया, लेकिन मैं आपको सिर्फ 2 रेफरेंस दूंगा, आपको आइडिया हो जाएगा मैं क्या कर रहा हूं. अयूब की किताब पहला बाब, ठीक है, लिखा जी एक दिन खुदा के बेटे खुदा के, और उनमें कौन आया जी? हाँ, शैतान भी उनके दरमियान आया. व्हाट इज दिस काउंसिल कि जिसमें शैतान भी आ जा रहा है रानी ना. ठीक है ना. तो काउंसिल वाज देयर. जबूर 82 जरा देखते हैं, एक मिनट. 82, साम 82. इस पे आप हमारा जबूर जोन प्रोग्राम भी देखिएगा अगर जबूर 82 को डिटेल में देखना है तो. मैं आपसे बता चुका हूं पहले. द काउंसिल, आसफ लिखता है जी, जबूर 82 पढ़ें जरा, पहली आयत. थैंक यू. उर्दू में लिखा है जी, खुदा की जमात में खुदा मौजूद है. ओ यार है कि ये मतलब खुदा की जमात में खुदा मौजूद है. व्हाट इज दिस स्टेटमेंट? ठीक है ना. तो ओरिजिनल हिब्रू में पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे? एलोहीम इज प्रेजेंस इन द प्रेजेंस ऑफ द मेनी गॉड्स. एंड देन हु आर दीज पीपल? वो इलाहों के दरमियान देयर आर अदर डिवाइन बीइंग्स, जिनके दरमियान वो क्या करता है? अदालत करता है. खुदा की जमात में खुदा क्या है? मौजूद है. ठीक है. खुदा ने मेरे, ज़बूर 100 यीशु मसीह ने जो यहूदियों को पेश किया था, खुदा ने मेरे खुदावंद से कहा कि तू क्या कर, तू, मैं तुझे तख्त पर बिठा चुका हूं, तेरे दुश्मन तेरे नीचे आएंगे. खुदा ने मेरे खुदावंद से कहा. ठीक है ना. मैं तो ये दाने हाथ. ओके जी. साम, ये भी ज़बूर है. सो अब देखते हैं जी कि ये जो हम है ये कौन है? द 3 डिफरेंट थिंग्स. आपको जो अच्छी लगती है तो ये के अंदर नहीं ट्रिनिटी है, टेक इट. तो नहीं जी नहीं, ट्रिनिटी नहीं है. उथे अयूब दे विच भी होर लोग भी सन और भी सन, दैट्स फाइन. तो ये मसला स्कॉलर्स इन 3 थॉट को पेश करते हैं, जो आपको समझ आता है, यू कैन टेक इट. ओके जी. नाउ व्हाट्स हैपन? हो गया जी. हम इंसान को क्या बनाएंगे? अपनी, हम हो गया जी पूरा. ओके जी. करेंगे क्या? पहली चीज, गॉड इज नॉट अ लोन वुल्फ. खुदा कभी तन्हा अकेले काम नहीं करता. गॉड इज ऑलवेज एट वर्क विद कोलैबोरेशन, चाहे वो तख्लीक हो. आप देखेंगे खुदा ने कहा क्या हो जा? रोशनी हो जा, एंड देन द लाइट स्टार्टेड. अब ये जो रोशनी है, याद रखिएगा, ये चांद सितारे समुंदर नहीं है, ये चांद और सूरज नहीं है. याद रखिएगा, ये लाइट फर्क है. ये कौन सी लाइट है ये मैं कभी आपको बताऊंगा. मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूंगा, क्योंकि सूरज चांद सितारे कब आ रहे हैं? 14वीं आयत में, चौथे दिन. ठीक है ना. और खुदा ने कहा फलक पर नैयर हो, दिन को रात से अलग करें, निशानों और जमानों और टाइम फ्रेम के लिए, फलक पर अनवार के लिए हो, जमीन पर रोशनी डालें. ऐसा ही हुआ. और बड़े 2 बनाए, सितारों को बनाया, फलक पर रखा, दिन पर रात पर हुक्म करें, उजाले को अंधेरे से क्या कर दें? जुदा करें. और खुदा ने कहा अच्छा है. शाम हुई, सुबह हुई, सो चौथा दिन हुआ. चौथे दिन में जाकर क्या बन रहे हैं? तो इसका मतलब है कि जो उससे पहले की लाइट है, दैट इज समथिंग डिफरेंट. ये कौन सी लाइट है? परसों मेरी मीटिंग थी एक इजिप्शियन स्कॉलर के साथ, और लंच में मैं उसके साथ था. ही इज द ओल्ड टेस्टामेंट प्रोफेसर. और उनकी किताब आ रही है जिसमें वो हैकल को बता रहे हैं. सर मैं आपको हिंट देने लगा हूं. हैकल को बता रहे हैं, हम हैकल के कितने पत्थरों के बारे में जानते हैं? कोने के सिरे का पत्थर सुना ना, बड़ा मशहूर, कॉर्नर स्टोन. ठीक है. हैकल के बारे में और पत्थर कौन सा है? कभी सुना किसी और पत्थर के बारे में जो मशहूर हो कोने के सिरे के अलावा? कैपस्टोन, जो ऊपर लगता है टॉप पे. ठीक है जी. कोने के सिरे का पत्थर. और दूसरा कौन सा? कैपस्टोन, जो सबसे खत्म होने के बाद ऊपर रखते हैं. ठीक है. He is saying जी कोने के सिरे का पत्थर जो है, actually it is not a corner stone, it is mentioning as a corner, but it is a middle stone. मिडल स्टोन क्या है? उनकी जब किताब आएगी इस पर बात करेंगे. उनका रेफरेंस क्या था? रेफरेंस, जमीन वीरान और सुनसान थी, गहराओं के ऊपर अंधेरा. ये अंधेरा कौन सा है? इट्स नॉट अ डार्कनेस जो हमारा अंधेरा है, रात और दिन वाला. इट्स अ डार्कनेस ऑफ the power of darkness, evil, badi, chaos, अब सारी.
उस अबतरी को, उस अंधेरे को खुदा ने क्या किया? खुदा की रूह, द गॉड्स ब्रेथ, खुदा की रुवाह जो है, इट वाज फड़फड़ा रही है, उसके ऊपर होवरिंग कर रही है, ताकि क्रिएशन कर सके। जो केओस है, अबतरी है, उसको क्या कर सके? तरतीब दे सके। एंड दैट्स व्हाट गॉड डिड। सो ये जो लाइट है, दिस इज अ क्रिएशन ऑफ द सेलेस्टियल बीइंग। आप देखेंगे सुबह सूरज निकलने से पहले, रात का अंधेरा जाने से पहले लाइट है, वो कहां से आ गई है? दैट्स अ डिफरेंट लाइट, क्योंकि सूरज तो अभी निकलेगा। साइंस के पास इसके फलक अलग आइडियाज हैं। वो कहता है जी सारा दिन जो चांद रोशनी लेता है सूरज से, वो उसको आगे रिफ्लेक्ट करता है, और यूं सूरज निकलने से पहले क्या हो रही है? रोशनी आ रही है। साइंस के पास अपनी है, बाइबल अपने बताती है जी। ओके, नंबर 2, दूसरी बात जो हम इस सारे सिचुएशन में देखते हैं, इंसान का रोल क्या है क्रिएशन के अंदर। पहली चीज, गॉड एंड मैन वर्किंग टुगेदर। खुदा और इंसान दोनों जमीन पर इकट्ठे क्या करते हैं? वो काम करते हैं। इसीलिए खुदा ने जो क्रिएशन बनाई, खुदा ने सिर्फ उसको इनिशिएट किया, बाकी चीजें ऑटोमेटिक क्या हो रही हैं? प्रोड्यूस। देखे ना, वेजिटेशन, चांद और सितारे और रोशनी, आप देखेंगे खुदा ने सिर्फ इस बेसिक इनिशिएशन किया है, बाकी चीजें, क्रिएशन ऑर्डर पूरे का पूरा खुद ब खुद उसको क्या कर रहा है? उसको मल्टीप्लाई कर रहा है। God is working with the creation, and now working with the creation, God need human being. उसको सस्टेन करने के लिए, उसकी कंटिन्यूटी के लिए। और यूं खुदा ने अपने इमेज को, अपने सेल्फ को खुदा ने जमीन पर रखा इंसानों की सूरत में। एंड दैट्स द रीजन गॉड एंड मैन वर्किंग टुगेदर। अर्थ पैदा कर रही है नीचे जमीन पर, जो क्रिएशन ऑर्डर है, खुदा उनके साथ मिलकर काम कर रहा है। और खुदा का जो इमेज है जी मेरे जीजो, हम सब, each and everybody sitting here or listening, we are all having God's image. हर एक के पास अगर खुदा का इमेज है और खुदा का दम है, खुदा की रूह, it means we are loaded. We are loaded with the capacity, with creativity, with craftsmanship. हमें खुदा ने जमीन पर सिर्फ 2 टाइम की रोटी खाने ली और बिल पे करने के लिए पैदा नहीं किया। God has a greater purpose. लिहाजा सरवाइव करने के लिए नहीं, मल्टीप्लिकेशन के लिए, रूलिंग के लिए, अथॉरिटी के लिए पैदा किया है। So God is working with human being. So पार्टनरशिप है जी, नर और नारी, so equal, मैन एंड वुमेन इक्वल, उनको पैदा किया, इक्वल इमेज दिया, इक्वल गिफ्ट दिए। सो बरकत दिया, मल्टीप्लाई करो, हुकूमत करो, फलो और बढ़ो, हुकूमत करो। प्रॉब्लम ये हुई इस इमेज को जी, ये जो कॉन्सेप्ट है ना हुकूमत करने वाला, इसको बड़े बड़े जो जिनके पास पावर थी, उन्होंने इसको यूज किया नेगेटिवली, कि जी हुकूमत करने का मतलब है बाकी लोगों को एक्सप्लॉइट करके उन पर क्या करो? हुकूमत करो, उन पर हमला करके हुकूमत करो, उनको बर्बाद करके, उनको कैदी बंदी बनाकर उन पर हुकूमत करो, उनको सबड्यू करके हुकूमत करो। ऐसा नहीं है। इट्स अ इक्वल पार्टनरशिप, इक्वल रिस्पेक्ट एंड इक्वल रोल। नर और नारी उनको पैदा किया। सो जब हम इस एक्सप्लॉयटेशन की बात करते हैं जी, तो फिर ये जो वर्ड डोमिनियन है, इसका मतलब क्या है? व्हाट काइंड ऑफ डोमिनियन खुदा चाहता है? अगर हम हुकूमत करने के लिए, तो जिसकी लाठी उसकी क्या है ना, डंडा पीर सारा दा फकीर कहता ना, डंडा सारा की कर देता है, सीधा करता है। दिस इज काइंड ऑफ इमेजेस। ज़बूर 72 हमारी हेल्प करता है जी, कि खुदा का जो बादशाही का कॉन्सेप्ट है जमीन के ऊपर, किंगडम का, किंग्स एंड क्वींस का, उसका जो इमेज है वो कैसा है। ज़बूर नंबर 72 जब आप पढ़ेंगे जी, और पैदाइश पहले बाब को अगर आप पढ़ेंगे, तो जरा देखें जो जमीन पर खुदा हुकूमत बादशाह कायम करेगा, वो बादशाह करेगा क्या। ज़बूर 72 हमें उसका थोड़ा सा हिंट देता है जी। और हम अक्सर ज़बूर 72 की आखिरी आयत गाते हैं 3-4, रहेगा ना सदा तीकर मसीदा, ठीक है। लेकिन ज़बूर 72 के अंदर जो बादशाह है, उसका रोल, उसका करैक्टर क्या है, और वो कैसे क्रिएशन ऑर्डर को बैलेंस रखेगा जी। चौथी आयत, वो इन लोगों के गरीबों की अदालत करेगा, जज करेगा, जजमेंट, ठीक है जी। नंबर 1, बादशाह का पहला काम क्या होता है? वो क्या करे?
जमीन पर इंसाफ कायम करे, इक्वल जस्टिस, इंसाफ करेगा, वो मोहताजों की औलाद को बचाएगा। तो सिर्फ हुकूमत करना, इंसाफ करना नहीं है, बल्कि क्या है? प्रोटेक्शन। वो जालिम को टुकड़े टुकड़े कर डालेगा। सो ही इज नॉट ओनली प्रोटेक्टिंग बट ही इज ऑल्सो फाइटिंग। यही वजह है आदम को जब खुदा ने बाग अदन में रखा एज अ इमेज ऑफ गॉड बेरर, तो दो काम दिए, तू इस बाग की क्या करना? बागबानी भी करना और निगहबानी भी करना। दोनों काम, प्रोटेक्शन भी करनी है और उसको कल्टीवेट भी करना है, उसको बढ़ाना भी है। जो वीड्स उसके अंदर आ जाएंगे, जो कीड़े मकोड़े पैदा हो जाएंगे, जो फलों को खराब करेंगे, फसलों को खराब करेंगे, उन कीड़े मकोड़ों को और उन हमलावरों से भी क्या करना है? लेकिन जो ज्यादती करेगा, जो बेल दूसरी बेल के ऊपर चढ़ जाएगी, जो दरख्त किसी दूसरे झाड़ी को दबा लेगा, उसको भी क्या कर डालना? उसको फारिग कर देना। So both. So that's why ये ज़बूर 72 हमारी हेल्प करता है जी। सो मेरे जीजो, आदम की जो क्रिएशन है, ओरिजिनल हिब्रू में मैं आपको बता चुका हूं जी। आदमा, गॉड फॉर्म द आदम फ्रॉम द डस्ट ऑफ अदामा, जमीन की सुर्ख मट्टी से, मड। खुदा ने, क्योंकि जमीन पर कोहर उठती थी ना, पानी, सो जो गीली मट्टी जो होती है उससे, आपको आइडिया देता हूं मैं। खुदावन यीशु मसीह ने ये रीएक्ट करके दिखाया है। कभी याद है आपको यीशु मसीह ने मट्टी कहां ली है और गीली की है? याद आया? कहने को तो यीशु मसीह ने मुर्दे सिर्फ, वर्ड मुर्दाबाद, ठीक है, तलिता कौमी, लड़की उठ, लड़की आवाज सुन दी, स्पिरिट वापस, ठीक है। नायन शहर की बेवा का लड़का सिर्फ हाथ ही लगाया, कहा ही है, मुर्दा उठ के की हो गया। बिकॉज नाउ द पावर ऑफ ब्रेथ, द पावर ऑफ क्रिएटर इज वर्किंग, ठीक है। सो इस सारे सिनेरियो में क्या हो रहा है? खुदावन यीशु मसीह ने करके दिखाया कि हाउ गॉड व्हेन रिक्रिएट, जो आंखें हैं ही नहीं है, यीशु मसीह ने थूका, गीला किया मट्टी और नवियां आंखा बना के कर देती। जा मौज कर। द मड, आदमा, सुर्ख मट्टी, मट्टी से लिया गया। द अर्थलिंग फ्रॉम द अर्थ। इसीलिए हम कहते हैं जब बंदा मर जाता है तो मट्टी को खाक से खाक क्या कर दो, क्योंकि खाक से निकाला गया है। सो ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन फॉर्मेशन, इट इज ऑल अबाउट मड। सो द अर्थलिंग फ्रॉम द अर्थ। एक और बड़ी दिलचस्प बात है जी, आदम नर था कि नारी? ये तो एल्डर साहब का थॉट है। एनीबडी एल्स? नर। और कोई? नर। हाँ जी। तो हमारे पास 2 स्कूल हो गए जी। नर वाले कितने, जरा हाथ खड़ा कर दें। 1 2 3 4 5 6। नर और नारी वाले कितने? एल्डर साहब कल्ला थोड़ा वोट है, पर की करिए, तो ये है ठीक हो, थोड़ा जवाब ठीक है, क्योंकि आदमा जो वर्ड है, इट्स जेंडरलेस। कैसे जेंडरलेस है? मैं भी आगे बताता हूं आगे कि आदम और औरत के लिए लफ्ज 2 फर्क कौन से इस्तेमाल हुए हैं इसी चैप्टर के अंदर, ठीक है। सो आदमा जो वर्ड है, इट्स जेंडरलेस, नो नर नो नारी, ठीक है। सो आदमा, इट्स अ जेंडरलेस, अ नॉन बाइनरी, क्योंकि जो बाइनरी डायनामिक है वो अगली आयत में आ रही है, दूसरे बाब की 27 आयत देखें, पैदाइश। तीसरे बाप की, मेरे ख्याल में, एक मिनट ठहरें। Where is 27? हाँ जी, ओके। 27 में है जी, नर और नारी उनको क्या किया?
पैदा किया, पहले बाब की 27 आयत है। यहां पर जो दो हिब्रू वर्ड हैं, एश एंड एशी, ये दो हैं हिब्रू वर्ड नर और नारी के लिए, ठीक है। और एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, हाँ जी, ओके जी। 31 वर्स चैप्टर 2 की। और खुदावंद खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदावंद खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत, यहां पर लफ्ज आया जी एशी, हिब्रू वर्ड है एश एंड एशी। और आदम ने कहा तो ये तो अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी एशी कहलाएगी, क्योंकि वो एश नर से निकाली गई है। सो नर और नारी, एश एंड एशी इन हिब्रू is in verse 23, the same word used in verse chapter 127. So adama सुर्ख मट्टी से लिया गया, it's a genderless. So मेरे जीजो, खत्म करते हैं आज के इस सब्जेक्ट को। पैदाइश पहला बाब और दूसरा बाब जी जो हमारे सामने है, दो कंक्लूजन हमारे पास, इंसान के रोल और इंसान के किरदार के बारे में, जमीन पर उसका क्या काम है, जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। पहली चीज, ह्यूमंस आर क्रिएटेड इन गॉड्स इमेज। मैं और आप इंसान खुदा की शबी और खुदा की सूरत पर क्या किए गए हैं, पैदा किए गए हैं। एंड एडिशन ऑन द इमेज ऑफ सॉइल, जो मट्टी है, मट्टी के इमेज, इसलिए वापस मट्टी में जाएंगे। नंबर 2, ह्यूमंस डोमिनियन ओवर क्रिएशन। खुदा ने जो तख्लीक बनाई है, इसीलिए खुदा ने छठे दिन में, आखिरी दिन में इंसान को, नर और नारी को पैदा किया, और पूरा क्रिएटिव ऑर्डर खुदा ने उसके हाथ में कर दिया। ला भाई, चाहे तो इसको बना दे, चाहे इसको बर्बाद कर दे, चाहे इसको संभाल ले, प्रोटेक्ट कर ले, या चाहे इसको क्या कर दे, खत्म कर दे। अल्टीमेटली इंसान ने किस चीज का चुनाव किया? डिस्ट्रक्शन, डार्कनेस, डिसोबीडियंस। दैट्स वाई जो क्रिएशन ऑर्डर है, इसकी फाइनल कल्मिनेशन न्यू क्रिएशन के अंदर है, कि खुदा सारी चीजों को क्या बना देता है, नया बना देता है। और जो नया बनाने का कॉन्सेप्ट है, अगेन इट स्टार्टेड विद द न्यू एडम, एंड हु इज दिस? खुदावंद यीशु मसीह। तो इसलिए जो सेल्फ इमेज है खुदा का, दैट प्रोटेक्टेड and that's proclaimed in the person of Jesus Christ, जो कि न्यू क्रिएशन का पहला फल है। और उसी न्यू क्रिएशन के वसीले से खुदा ने जो कायनात बनाई है, God as king of the cosmos, as God as king of the composed, the divine farmer in Genesis 2, God trades the royal scepter for a garden spade. तो खुदा ने ट्रेड इन किया, अपने सेल्फ इमेज को मट्टी के साथ खुदा ने मिला दिया। सो मेरे जीजो, हम कौन है फिर? आर वी किंग और आर वी सर्वेंट, आर वी स्टीवर्ड्स? क्या ख्याल है जी? व्हाट अबाउट सर्वेंट एंड स्टीवर्ड? किंग वाले कितने ने? साहब दो। सर्वेंट एंड स्टीवर्डशिप वाले कितने हैं? सुच्चा साहब डरन डे, सुच्चा साहब लंबा करो है ये। ओके जी, इधरले बोलन डे, इधरले की गल है? तुम एवं वेखन आयो की हो रहा है? टिकट लैके आयो? हाँ जी, सर्वेंट किंग केड़े पासे? वोट किधर जाएगा? सर्वेंट, स्टीवर्ड, किंग? किंग कोई नहीं, सर्वेंट, स्टीवर्ड, किंग। ओके जी, एक बंदा पीछे हाथ दो में खड़ा करके ना, मेरा ताज मेरा दे। ओके जी, हाँ जी, ये वाली चार लोग, ये अब बुआ पीछे कौन बैठे? अच्छा, मैं कहा बुआ गायब है। हाँ जी, दोनों
اچھا پتہ ہی نہیں ہے, میں کہنے لگا دونوں. ویسے ٹیکنیکلی دس از آنسر, ٹیکنیکلی دس از آنسر, وی آر ہائیبرڈ. We are both royal priests in the royal kingdom and we are steward also. So we are both. We are royal kings as well as we are steward of God's creation. This is human's role. یہ انسان کا کام ہے زمین کے اوپر کہ وہ خدا کی بادشاہی کو, خدا کے کام کو زمین پر پیش کرے. اس کے ساتھ ساتھ جو خدا نے اسے کریشن دی ہے, چاہے وہ کلیسیا کے طور پر ہے, خاندان کے طور پر ہے, گھرانے کے طور پر ہے, زمین کے طور پر ہے, سٹیزن شپ کے طور پر ہے, بزنس کے طور پر ہے, گاڑیوں کے طور پر ہے, واٹ ایور گاڈ ہیز گیون اس,